Hey folks, we'll be looking at something known as impairment of assets, which is NDS 36. Probably a very important standard from exam standpoint. To understand, it is pretty simple. It is fairly straightforward, but operationally there could be some challenges because the solutions that you see for CA final NDS 36, especially, are a bit complicated. Um, we'll start with India's 36 for now, in impairment of assets. Before that, a little intro about myself. Who am I? I'm a chartered accountant. I'm CA Nihal. I cleared CA final in May 22 attempt. I scored 77 in financial reporting and 74 in audit. So if you need any tips for audit on how to clear it, what is the approach, what is the right approach for audit, we'll be sharing that too. How is the structure of this video going to be, or the series going to be? We'll be calling this series as FR Simplified series. The idea is going to be to cover the concepts in the standard in the first 15 to 20 minutes, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस वही सॉल्व करेंगे जो रिलेवेंट होंगे. नाउ relevant का मतलब क्या होता है कि if there is a question which covers multiple concepts, so we'll be covering those questions instead of covering each question that covers one single concept, right? um, Jumping right into it, we'll study impairment in this 36 today. What does impairment mean? Impairment typically means what? Impairment का मतलब क्या होता है? If there is an asset in your books, say for example there is an asset in your books, that asset is supposed to give you something. That asset is supposed to give you something, right? For example, अगर तुम्हारे बुक में कोई asset है, उस asset का मतलब क्या है? If you have an asset in your books, that means that asset is going to give you cash flows in the future, right? That asset is supposed to give you cash flows in the future. Hence, it is an asset in your books. For example, अगर कोई trade receivable तुम्हारे books में है, that trade receivable is supposed to give you what? That trade receivable is supposed to give you cash in the near future. Yes. Now this cash flow is a direct cash flow. Yes. But there are assets which do not give direct cash flows. There are indirect cash flows. मतलब if there is a PP in your books, PP से कोई direct cash flows आता है? नहीं आता. We have PP in our books so that it helps us generate revenue. Now hence the cash flows that we get from that PP is an indirect cash flow. Yes. What happens? What happens? Why is this standard? Firstly, why is this standard? Now, what is the idea? Idea is कि कोई asset है. That asset is going to give you something. It is supposed to give you something. Hence, it is an asset in your books. Now, due to certain conditions, due to certain situations, this asset is not capable enough now. This asset is not capable enough now to give you those cash flows. This asset is not capable enough now to give you those cash flows. Yes. What happens? What happens? There could be internal reasons or there could be external reasons. External reasons क्या हो सकता है? External reasons could be कोई मार्केट कंडीशंस या फिर कोई जियोपॉलिटिकल रीजंस, कोई रेगुलेटरी रीजंस की वजह से तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट आ गया, या फिर तुम्हारे इंटरनल मैनेजमेंट चेंजेस हो गए, इसलिए तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ गया. हेंस दैट एसेट इज नाउ नॉट केपेबल टू गिव यू समथिंग दैट इट वाज सपोज्ड टू गिव यू. एसेट से कुछ मिलने वाला था, वो भी नहीं मिलने वाला है. यस. हेंस दैट एसेट हैज टू बी इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि एसेट का वैल्यू अपने को कम करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. यस. दैट इज टिपिकली व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट इज. यस. इम्पेयरमेंट का मतलब मेरे बुक्स में एसेट कुछ वैल्यू पे दिख रहा है, बट दैट इज नो मोर द वैल्यू. दैट इज नो मोर द वैल्यू. हेंस इट हैज टू बी रिड्यूस्ड. हेंस इट हैज टू बी रिड्यूस्ड. यस. नाउ देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि मेरे को एसेट से 100 रुपये का कैश फ्लो आना था, 100 रुपये का कैश फ्लो आना था. हेंस मेरे बुक्स में अभी वो 100 रुपये का है, अभी वो 100 रुपये का है, पर अब मेरे को 105 का कैश फ्लो आना है, तो इम्पेयरमेंट बढ़ा देंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स नॉट पॉसिबल. इम्पेयरमेंट इन इट्स नेचर इज व्हाट? इम्पेयरमेंट इन इट्स नेचर इज व्हाट कि भाई तुम्हारा 100 रुपये का कैश फ्लो आना है, वो 100 रुपये 98 तो नहीं हुआ. दैट हैज टू बी टेस्टेड. दैट हैज टू बी टेस्टेड. वी गेट दिस. डू वी गेट दिस? यस. Okay, we understood the meaning of what impairment typically means. Generally, impairment होना क्या है? Now, once we understand what impairment means, we'll talk about how do we compute impairment of loss. Impairment loss. Impairment loss compute करने के लिए क्या चाहिए होता है? We need the carrying amount. अपने books में उस asset का value क्या है? Firstly, the first step is what? To understand मेरे books में क्या value है. Secondly, that asset value in my books has to be compared with something known as recoverable amount. What is recoverable amount? Recoverable amount का मतलब होता है कि मेरे को इस asset से recovery कितना होगा. इस एसेट से मेरे को रिकवरी कितना होगा. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. रिकवरी इन द सेंस, मैं अगर एसेट रखता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज. इफ आई कीप द एसेट इन माय ऑपरेशंस, इन माय बिजनेस, दैट एसेट इज व्हाट? दैट एसेट इज एसेट दैट इज हेल्पिंग मी जनरेट रेवेन्यूज. यस. हेंस उसका वैल्यू इन यूज निकालते हैं. व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज का मतलब होता है इफ देयर इज एन एसेट इन योर बुक्स and it is going to generate revenue, what is the revenue, what is the cash flow it is going to give me in the future, what is the cash flow that is going to give me in the future. Yes, that is my value in use. Note, standard very clearly says अगर तुम्हारे कोई प्लान्ड रिस्ट्रक्चरिंग है, उससे तुम्हारे कोई कैश फ्लोज में उतार चढ़ाव होना है. इफ यू हैव सम प्लान्ड रिस्ट्रक्चरिंग जिसकी वजह से देर आर इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, दोज हैज टू बी रिड्यूस्ड, दोज हैज टू बी इग्नोर्ड.
you have to exclude those restructuring की वजह से जो भी कैश फ्लो जाएंगे, there has to be ignored completely. Yes, because there is no commitment as such. There is no commitment as such. तो वैल्यू न्यूज बढ़ाने के लिए तो तुम बोलते रहोगे कि भाई आगे जाके हम ये करने वाले, वो करने वाले. Is that possible? Is that possible? Standard is very clear with this. Standard is very clear with this कि boss, whatever restructuring we are going to do, whatever changes you are going to do in the future has to be ignored. अगर हुआ है आज अगर हो गया है, तो in that case you take it. अगर हुआ ही नहीं है तो has to be ignored. Has to be ignored. Yes, this is future restructuring. Okay, we have to ignore this. Okay, we have value news. Value news का मतलब अगर मैं एसेट को रखता हूँ, एसेट को अगर मैं नहीं रखूंगा तो एसेट को बेच दूंगा. If I'm not keeping the asset with me, that means I'm going to sell the asset. If I'm going to sell the asset, I'm going to get something. If I'm going to sell the asset, I'm going to get something. If I'm going to get rupees 100 by selling the asset, there is a possibility I might spend rupees 2 to sell the asset. Yes or no? There might be some transportation cost, some intermediary in the between. Yes, अगर मैं बेच रहा हूँ एसेट को, there is a possibility कि मैं कोई खर्चा उठा रहा हूँ वो उस एसेट को बेचने के लिए. That's why standard says what, you have to take fair value less cost to sell. अगर मेरे को 100 रुपया मिलना है एसेट बेच के और 2 रुपया मेरा बेचने का कॉस्ट है, 100 minus 2 has to be, this becomes 98. 98 is what, fair value less cost to sell. Do we get this? That becomes my recoverable amount. What is my recoverable amount? Recoverable amount is a higher of what, fair value less cost to sell or value news. Why higher? There are two possibilities. रिकवरी का दो पॉसिबिलिटी है. एक मैं बेच दूंगा या फिर मैं रखूंगा. Whatever is better is the best for me. Hence whatever is higher. Do we get this? Now you have a carrying amount, we have recoverable amount. Say carrying amount my books is rupees 100 and the recoverable amount is rupees 98. Yes, what do we do? 2 रुपया क्या है? 2 रुपया is my impairment loss. Do we get this? 2 rupees is my impairment loss. Are we okay with this? Yes. इस impairment loss का ट्रीटमेंट क्या करूँ? Typically ये P&L में जाता है. But depends on the valuation model or the models that you use for your PP or your asset. Yes, we'll talk about this in the future. Yes, we've talked about what impairment means. We've talked about how do we compute that impairment loss. Yes, how do we treat the impairment loss that we've computed. Impairment loss मैंने calculate कर लिया, मेरे को दिख गया कि भाई मेरा 2 रुपये का impairment loss है. Now what do I do with it? अगर मेरा कोई PP है, if I have a PPE, and that PPE is at cost model, if that PPE is at cost model, that means what, मेरा depreciation कहाँ जाता है? Directly P&L में जाता है. मेरा डेप्री कहाँ जाता है? P&L में जाता है. मैं OCI को टच करता हूँ क्या? Do I touch OCI in my cost model? Of course not. I touch directly P&L. तो मेरा impairment loss जो भी जाएगा, that will go in P&L. My impairment loss will go in P&L. If my asset is at a revaluation model, and there is a impairment loss, अगर कोई impairment loss आया, in that case OCI का बैलेंस जितना भी है उसमें से पहले impairment loss has to be reduced. Do you get this? Impairment loss firstly has to be reduced with the OCI balance. अगर मेरा 2 रुपये का impairment loss है, 10 रुपया पड़ा OCI में, this 2 firstly has to be settled with 10. Do we get this? उसके बाद अगर OCI का बैलेंस भी खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल OCI में 10 पड़ा है, मेरा 20 रुपये का इम्पेयरमेंट है, पहले 10 OCI से सेटल होगा, उसके बाद बचा हुआ 10 का जाएगा P&L में. Do we get this? Do we understand the treatment? अगर कॉस्ट मॉडल है तो P&L में जाएगा डायरेक्टली. अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, फर्स्ट हैज टू बी सेटल्ड विद OCI. उसके बाद बचा नहीं OCI में कोई बैलेंस, then has to go to P&L. Do we get this? Okay. What does standard cover with respect to assets? कौन से assets cover है इसमें? स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली 3 assets, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 assets को कवर नहीं किया है. स्टैंडर्ड ने एक्सक्लूजन बताए हैं. कि फाइनेंशियल एसेट्स पे दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई. यस, डिफर्ड टैक्स पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता. टिपिकली हम ये 3 आइटम जो है उस पे देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है. विल सी 16, 38 एंड 40 PP, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 3 पे स्टैंडर्ड टिपिकली अप्लाई होता है. इफ यू अंडरस्टैंड इसमें से कोई भी फाइनेंशियल एसेट नहीं है. यस, हेंस उनका इम्पेयरमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Tell me one thing, what is a financial asset? Financial asset means something that is going to give you cash directly. Financial asset का मतलब क्या होता है? कोई भी cash as per Ind AS 109 becomes cash or equity instrument. We'll talk about that later. मतलब क्या होता है? What is the idea? Idea is कि financial asset मतलब क्या होता है? It is going to give you cash or equity instrument. Non financial asset क्या है? Non financial asset क्या होता है? Directly कोई cash usually आता नहीं है. कोई usually PP से cash नहीं कमाता है. कोई usually intangible investment property से cash नहीं कमाता है. 2 investment property से rent आता है. But the idea behind this is not the same. Yes, and these are typically non-financial assets. Yes, you understood?
व्हाट द इम्पेयरमेंट लॉस का मीनिंग इज, वी अंडरस्टूड उसको कंप्यूट कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है, और कौन कौन सी एसेट्स यूजुअली कवर्ड है. तीन चीजें यूजुअली कवर्ड है, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. यस, विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी. अभी इम्पेयरमेंट लॉस करना है, स्टैंडर्ड बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस करना है, पता कैसे चलेगा कि इम्पेयरमेंट लॉस आया है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है कि नहीं, वो टेस्टिंग करने में पता चलेगा. सी टेल मी वन थिंग, if there is an asset in your books, if there is an asset in your books at so and so amount, if there is an asset in your books at so and so amount, उसको इम्पेयर करना है, उसको इम्पेयर करना है, उसका इम्पेयरमेंट हुआ है, रादर दिस इज द राइट वर्ड, उसका इम्पेयरमेंट हुआ है, ये पता कैसे चलेगा? टेस्ट करके कि भाई इसका इम्पेयरमेंट होना चाहिए कि नहीं. टेस्ट करके, एसेट को टेस्ट करना होता है कि इसके वैल्यू में कोई रिडक्शन तो नहीं है. एसेट को टेस्ट करना होता है कि इसके वैल्यू में कोई रिडक्शन तो नहीं है. स्टैंडर्ड डज नॉट क्लियरली से कि कितना करना है, कब करना है, तुमको डेली करना है, वीकली करना है, बाई वीकली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है. स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफिकली से. स्टैंडर्ड सेज कि अगर कोई इंडिकेशन है, इफ देयर इज एन इंडिकेशन, इफ देयर इज एन इंडिकेशन कि भाई पॉसिबिलिटी है एसेट के वैल्यू में इंपेयरमेंट आने की, इन दैट केस इट इज अप टू मैनेजमेंट, इट इज अप टू मैनेजमेंट टू डिसाइड. अगर कोई इंडिकेशन है तो मैनेजमेंट को करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस इज एटलीस्ट एनुअली. स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि एक बार तो करना ही साल में, एटलीस्ट एनुअली करना ही है फॉर थ्री थिंग्स. क्या? इंटेंजिबल जिसका इनडेफिनाइट लाइफ है. अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका इनडेफिनाइट लाइफ है, व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका कोई इनडेफिनाइट लाइफ है, इनडेफिनाइट लाइफ मतलब वो परपेचुअल है, इट इज परपेचुअल, इट इज इन परपेचुइटी, इट्स लाइफ इज इन परपेचुइटी. यस और नो? इट्स लाइफ इज इन परपेचुइटी. वी अंडरस्टैंड. अगर परपेचुअल है तो ऐसे तो मेरे बुक्स में वो कायम रहेगा, it is going to be in my books forever. Hence the standard says what? Hence the standard says कि अगर कोई एसेट है जो परपेचुअली तुम्हारे बुक्स में है, स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट तुम्हारे बुक्स में परपेचुअली रहने वाला है, जिसका इनडेफिनाइट लाइफ है, उसका तुमको साल में एक बार इंपेयरमेंट करना ही है. फर्स्टली, वी अंडरस्टैंड. सेकेंडली, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या? इंडेस इज वेरी क्लियर विद दिस. अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जो तुम्हारे डेवलपमेंट स्टेज में है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू जज कि वो फ्यूचर में काम आएगा कि नहीं? जब बन रहा है तभी देख लो कि भाई आगे काम आएगा कि नहीं. बनने के बाद और खर्चा करने के बाद कोई देखना है, बन रहा है तभी देख लो. हेंस जो भी इंटेंजिबल एसेट है अंडर डेवलपमेंट हैज टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर. यस. लास्टली, we have goodwill on business combination. Yes, these are the three things which have to be tested for impairment at least annually. Yes, उसमें impairment हो या ना हो, that is the second question. The first question is these assets have to be tested for impairment at least annually. Yes, we talked about frequency. There is something known as cash generating units, CGU. CGU का मतलब क्या होता है? What does CGU mean? CGU means कोई एक एसेट है, वो एसेट अपने आप में इंडिविजुअली कोई कैश जनरेट करने के लायक नहीं है. इट इज नॉट केपेबल इनफ टू जनरेट कैश ऑन इट्स ओन. हेंस उस एसेट को इन कॉम्बिनेशन विद अदर एसेट्स कैश जनरेट करने का कैपेबिलिटी रखता है. दैट एसेट इन कंजंक्शन विद अदर एसेट्स होल्ड्स द कैपेबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैश जनरेटिंग यूनिट. इट इज कॉल्ड एज यूनिट. यस, वो एसेट्स सारे मिलके कैश जनरेट करते हैं. Hence, that is what CGU means. Yes, we'll talk about case studies जहाँ पे CGU के लिए impairment कैसे होगा. We'll talk about case studies जहाँ पे CGU के लिए impairment कैसे होगा. See, tell me one thing. Analysis of financial statement. We have a question. We have a question on Mumbai Challengers, right? If you've heard about this, उसमें we've talked about कोई एक player है. That player in himself, 11 लोगों की टीम है. क्रिकेट में 11 लोगों की टीम है. कोई एक प्लेयर इन हिमसेल्फ इज ही केपेबल टू जनरेट कैश फ्लोज ऑन हिज ओन अनलेस ही सोल्ड तब मिलेगा ना. 11 में से एक प्लेयर ऐसा कोई है कि वो एक ही बंदा है मतलब, या फिर इंडिविजुअली कोई बंदा है जो कैश फ्लो जनरेट कर सकता है. इंडिविजुअली कोई बंदा है जो कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? नहीं, इट्स अ टीम एज अ होल जनरेट्स कैश. यस और नो? इट्स अ टीम एज अ होल दैट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स. यस, hence it is called as what? It is called as CGU. कैश जनरेटिंग यूनिट है. वो खुद नहीं कर पाता है, वो दूसरे एसेट्स के कंजंक्शन में, वो दूसरे एसेट्स के साथ मिलकर कैश जनरेट करता है. हेंस when we talk about impairment, we talk about this unit as a whole. When we talk about impairment, we talk about this unit as a whole. Yes, look at a few case studies quickly.
CGU, राइट. फर्स्ट केस, कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब मल्टीपल एसेट्स है उस एक यूनिट में, राइट, जो इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं पर एज अ ग्रुप कर पा रहे हैं. डू वी गेट दिस? केस वन, वी लुक एट केस वन. केस वन क्या है? केस वन इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट ए, CGU ए है. CGU ए में आइटम ए है, बी है, सी है, एंड वी हैव गुडविल दैट इज एलोकेटेड टू द CGU वन, राइट. अभी उस CGU में जो आइटम्स है, those items individually don't hold a recoverable amount. The items individually don't hold a recoverable amount, but the CGU as a whole, the CGU as a whole holds 400 रुपए का recoverable amount. The carrying amount that we have in our books is what? 500 रुपया. मेरे बुक्स में 500 रुपए का CGU पड़ा हुआ है, but the recoverable amount of the CGU is rupees 400. Is rupees 400. 100 रुपए क्या हो गया? Impairment loss. 100 रुपया हो गया impairment loss. This 100 रुपया will be first adjusted through what? This 100 रुपया will be first adjusted through what? Goodwill. Goodwill. Yes. बैलेंस किस में होगा? बैलेंस विल बी इन द कैरिंग अमाउंट्स के रेशियो में. ये तीनों का जो कैरिंग अमाउंट है उसके रेशियो में मेरा बच जाएगा. इंपेयरमेंट लॉस पहले एडजस्ट होगा मेरे गुडविल से. व्हाई गुडविल? व्हाई गुडविल? व्हाट डज गुडविल मीन गाइस? व्हाट डज गुडविल मीन? गुडविल का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन और वी हैव सम आइडिया ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. आई टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द इंटेंट ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स. I take the fair value. Yes, no. I take the fair value and I pay. If I pay over and above those fair values, if I pay over and above those fair values, that means there is goodwill. Yes, think about this. Irrespective of the standard says, irrespective of what the standard says, think about this. अगर कोई बिजनेस है जिसके एसेट्स का फेयर वैल्यू इज एक्स रुपीज 100 फॉर एग्जाम्पल, पर तुम उसको 150 रुपये देने के लिए तैयार हो, तो 50 रुपये कुछ तो वैल्यू रखता है. That 50 rupees has some value. Just to know what is that value? That is a goodwill that the business holds. That is the goodwill that the business holds. Now, if there is an impairment, there is an impairment. पहला कौन हटेगा? पहला तो goodwill हटेगा. Goodwill है ही नहीं. If you want to impair those assets, पहले तो goodwill हटना चाहिए. Yes or no? पहला तो goodwill हटना चाहिए. Goodwill का पहला आइडिया ये था कि तुम्हारे assets के above वो value था. तो अगर impair हो रहा तो पहले ये हटेगा ना. Do we get this? तो पहले goodwill अपने हटाया. We reduce 50 first from goodwill. बचा हुआ जो भी है वो assets से निकलेगा in the carrying amount ratio. Do we get this? Carrying amount, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगा? 100 माइनस 11. 11 इज एलोकेटेड बेसिस उनके कैरिंग अमाउंट्स. लुक एट दिस, 100 माइनस 11, 189, 178, 133 becomes my new revised carrying amounts. Yes, this is the revised carrying amount of CGU. This is case one. Case one is straight forward, जहाँ पे तुम्हारे assets है और तुम्हारा goodwill उस CGU के लिए कितना allocable है वो अपने को पता है. Let's look at case two. Okay, तुम्हारा एक goodwill है बिजनेस का, तुम्हारा एक गुडविल है बिजनेस का 100 रुपये. तो CGU 1 में कितना जाएगा? CGU 2 में कितना जाएगा? 25 रुपये CGU 1 में जाएगा, 75 रुपये CGU 2 में जाएगा. यस, इफ अ गुडविल, if there is goodwill as a whole which is allocable, you know how to allocate that between CGUs. If you know how to allocate that goodwill between CGUs, that goodwill must be allocable first. That goodwill must be allocated first. We get this? अगर ये 100 रुपया है, वो 100 रुपये का 25 और 75 ये मेरे को पता है, that has to be allocated first. We get this? CGU 1, सेम चीज आइटम ए में मेरा 100 रुपये का कैरिंग अमाउंट है, बी में 200 रुपये का कैरिंग अमाउंट है, सी इज 150 एंड गुडविल एलोकेबल इज 25 रुपीज. इस टोटल कैरिंग अमाउंट इन बुक्स फॉर द CGU इज 475. यस, इफ द रिकवरेबल अमाउंट इज रुपीज 420, दैट मीन्स 55 रुपीज क्या है मेरा इंपेयरमेंट लॉस है. अगर ये 100 रुपया एलोकेट ही नहीं किया होता, तो क्या होता? मेरे को पता ही नहीं कि 100 रुपये का एलोकेबल वैल्यूज क्या है, 25, 75 मेरे को पता ही नहीं है. तो व्हाट डू वी डू? If I do not know what this 100 is going to be, if this 100 is going to be 25 or 30 or 40, what do I do? That is case number 3. Case 2, do we understand? Case 2, do we understand? If we know 100 का allocation क्या है, we allocate that to the CGUs. Yes, but if we don't know, then we move to case 3. We अपने को पता नहीं कि भाई ये जाएगा CGU 1 में कितना और CGU 2 में कितना. We do not know what is the allocable percentage in CGU 1 and CGU 2. Now, in this case, what do we do? In this case, what do we do? There is a stage-wise solution for this. What is the solution? CGU 1. Because दो CGU है अपना, CGU 1, CGU 2. CGU 1 में there is item A, item B. Yes. CGU 2 में there is item X, item Y. Standard क्या बोलता है? Standard is very clear. Standard बोलता है अगर तुमको गुडविल का एलोकेशन पता नहीं है, in that case, before goodwill allocation, CGU को तुम इम्पेयर कर लो. तुम देखो कि भाई उसका इम्पेयरमेंट के बाद वैल्यूज कितना आता है, राइट? CGU 1 में आइटम ए इज 100 रुपये का वैल्यू कैरिंग अमाउंट, बी इज 200 का कैरिंग अमाउंट, 300 रुपये मेरा CGU 1 का वैल्यू, राइट? रिकवरेबल अमाउंट इज 250. यस, इम्पेयरमेंट लॉस मेरा 50 का आ गया. उस 50 को मैंने बांट दिया टू ए एंड बी बेसिस द कैरिंग अमाउंट.
दिस बिफोर गुडविल एलोकेशन। गुडविल एलोकेशन हुआ नहीं क्योंकि हमको पता नहीं है, गुडविल एलोकेशन हुआ नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं है गुडविल कितना होगा CGU1 के लिए, राइट। तो वी हैव impaired the assets, we have impaired the asset basis their carrying amounts. Yes. CGU2, CGU2 आइटम एक्स है, आइटम वाई है, 70 रुपए का वैल्यू है इसका कैरिंग अमाउंट एंड इसका 130 है, राइट। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 200 रुपए। यस, इसका रिकवरेबल इज 180। 20 बिगिंस में इम्पेयरमेंट लॉस। दिस इम्पेयरमेंट लॉस इज एलोकेटेड अगेन टू एक्स एंड वाई बेसिस द कैरिंग अमाउंट्स। यस, दिस इज द न्यू रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। वी गेट दिस, थिंक अबाउट दिस। एसेट्स जो है, एसेट्स तो इम्पेयर हुए, एसेट्स जो है, एसेट्स तो इम्पेयर हो गए, ए बी एक्स वाई इम्पेयर हो गए। हैव दे गॉटन इम्पेयर्ड? हैव दे गॉटन इम्पेयर्ड? यस। हैव दे गॉटन इम्पेयर्ड? यस। अभी व्हाट इज द स्टैंडर्ड से? तुमने गुडविल एलोकेशन के पहले उसको इम्पेयर कर लिया है। अभी दोनों का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेके आओ, दोनों का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेके आओ। CGU1 का कितना कैरिंग अमाउंट है? 250। CGU2 का कितना कैरिंग अमाउंट है? 180। दैट इज पोस्ट इम्पेयरमेंट। यस, गुडविल कितना है आपको पता नहीं है, तो टोटल बिजनेस का गुडविल कितना ही पता है। दिस बिकम्स द टोटल बिजनेस। CGU1 is one part of the business, CGU2 is another part of the business, and goodwill is another part of the business. Total business is 480. Total business is 480. Recoverable amount for that business is 460. 20 रुपया क्या है? 20 रुपया is 20 रुपया is 20 रुपया is what? Impairment for the business. This 20 rupees is impairment for the business. Will be allocated to what? Will be allocated to what? CGU1? Absolutely not. CGU2? Absolutely not. Why? Because CGU1 and 2 are already impaired. CGU1 and 2 already impaired हो चुके हैं, उसको वापस इम्पेयर नहीं करना है। इनफैक्ट वी हैव गुडविल हियर, तो 20 जाएगा गुडविल पे। वी गेट दिस, वी गेट दिस। ये 20 रुपए का जाएगा गुडविल में जाएगा, क्यों? क्योंकि A1 और 2 तो इम्पेयर हो चुके हैं। यस, वी अंडरस्टैंड CGU, वी अंडरस्टैंड CGU। CGU में क्या है? CGU में क्या है? Asset in itself is not able to generate cash. What is CGU? What is CGU? CGU मतलब क्या होता है? That asset in itself is not able to generate cash. Hence, in conjunction वो cash generate करेगा। Yes, अगर गुडविल पता है तो allocable value कितना है वो पता है तो उसको allocate कर लो and hence impairment testing करो। नहीं पता है तो individually CGUs को impair करो, उसके बाद total business में गुडविल ऐड कर दो, total business का recoverable amount देखो और फिर impair करो। तो we get this। जब ये करोगे in that case CGU1 and 2 already impaired थे तो उसको वापस impair नहीं करना, गुडविल को करना है। We get this, we get this। एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट एसेट, ये तुम्हारे टेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन 2 में है। यस, दिस इज इन टेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन 2। आई हैव सम। व्हाट इज कॉर्पोरेट एसेट मीन? कॉर्पोरेट एसेट का मतलब होता है, इट इज सिंपल। ट्रीटमेंट हमने जो गुडविल को देखा, गुडविल के लिए देखा इन CGUs, ट्रीटमेंट फॉर दिस रिमेन्स द सेम। ट्रीटमेंट हमने जो CGU के लिए देखा, CGU में देखा फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम। यस, कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है? कॉर्पोरेट एसेट टिपिकली मीन्स व्हाट? कॉर्पोरेट एसेट मीन्स कोई एसेट जो तुम्हारे common asset. Corporate asset is typically a common asset that is used in multiple CGUs. Yes, corporate asset is a common asset that is used for multiple CGUs. Yes, कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के लिए तुम रेंट पे कर रहे हो, पर उसमें मल्टीपल CGUs है, मल्टीपल एसेट्स यूज करते हो उस बिल्डिंग में, पर बिल्डिंग तो एक ही है। दैट बिकम्स अ कॉमन बिल्डिंग फॉर ऑल द CGUs इन दैट बिल्डिंग। यस और नो? क्वेश्चन आएगा उस पे, विल अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। यस, ओके। वी टॉक्ड अबाउट इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल पॉसिबल है क्या? इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल पॉसिबल है क्या? इम्पेयरमेंट लॉस टिपिकली क्या होता है? तुम्हारे एसेट से कुछ आना था, अभी वो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, हेंस इम्पेयरमेंट हो गया। अभी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल हुआ था, इम्पेयरमेंट लॉस मैंने बुक किया था, उसका रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने 100 रुपए की चीज को इम्पेयर करके 90 कर दी थी, तो मेरे बुक्स में आज वो 90 की है, पर ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस द वैल्यू दैट इट इज गोइंग टू ब्रिंग मी इट इज ₹93, is ₹93। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इम्पेयरमेंट दैट आई हैड बुक्ड उसका रिवर्सल हो सके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, दो पॉसिबिलिटी, दो चीज़ है, इंडिविजुअल एसेट्स है और CGU है। इंडिविजुअल एसेट्स है और CGU है। अगर तुम इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल कर रहे हो, पहली बात तुमको देखना पड़ेगा तुमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक का किया था, जहाँ से बुक किया था वहाँ से रिवर्स कर लो, जहाँ से बुक किया था वहाँ से रिवर्स कर दो। अगर कॉस्ट मॉडल है तो तुमने कहाँ बुक किया था? उसको PNL में बुक किया था। अगर कॉस्ट मॉडल है तो उसको तुमने PNL में बुक किया था, तो रिवर्सल कहाँ होगा? PNL में। अगर रीवैल्यू मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो पहले अगर तुमने उसको डायरेक्टली PNL में डाल दिया था,
उसने तुमने उसको डायरेक्टली पीएनएल में डाल दिया था, तो रिवर्सल का होगा पीएनएल में। अगर मैं डायरेक्टली पीएनएल में डाल रहा हूँ मतलब क्या होता है, मेरे ओसीआई में कुछ पड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली पीएनएल में डाल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मेरे ओसीआई में कुछ नहीं था। अगर ओसीआई में कुछ था तो मैंने पहले ओसीआई से कम किया होगा एज इम्पेयरमेंट लॉस। अभी ओसीआई से रिवर्स कर दो उसको, डू वी गेट दिस? रिवॉल्यूशन मॉडल है, रिवॉल्यूशन मॉडल में अगर मैंने पीएनएल में डाला है, पीएनएल से रिवर्स कर दो। अगर ओसीआई से मैंने कम किया था तो उसको रिवर्स कर दो, डू वी गेट दिस? डू वी गेट दिस? सीजीओ, सीजीओ के केस में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल केस इन केस ऑफ सीजीओस, राइट? अगर तुम्हारा कोई भी एसेट्स है इन सीजीओ, उसके लिए उसके अगर इंप्रूवमेंट्स हो रहे कंडीशंस में, इफ देयर आर इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द एसेट्स, इफ देयर आर इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द एसेट्स, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल होना चाहिए। टिपिकली इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल होना चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड से? व्हाट इज द स्टैंडर्ड से? एक बार तुमने गुडविल को रिड्यूस कर दिया, एक बार तुमने गुडविल को रिड्यूस कर दिया, गुडविल को हम वापस टच नहीं कर सकते। वी कांट टच दैट गुडविल अगेन। इफ यू रिड्यूस द गुडविल, इफ यू रिड्यूस द गुडविल, तो गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल नहीं होता। यस, जितना भी टोटल इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है, अगर 20 रुपए इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल होना है तो 20 तुम सारे एसेट्स में बांट दो, पर गुडविल में नहीं बांटोगे। गुडविल तुमने कम कर दिया, गुडविल तुमने कम कर दिया, उसको तुम वापस नहीं बढ़ाओगे। कम कर दिया उसको तुम वापस नहीं बढ़ाओगे। गेट दिस? अगर गुडविल मेरा 50 का था और 50 से मैंने उसको 40 कर दिया था, यस, 50 से मैंने उसको 40 कर दिया था, अभी रिवर्सल अगर हो रहा है 2 रुपए का, तो मैं 40 जो है 40 को 42 नहीं करूंगा, ये 2 रुपया जो है वो मैं एसेट्स में बांट दूंगा, ये मैं एसेट्स में बांट दूंगा। डू वी गेट दिस? डू वी गेट दिस? यस। Standard talks about what? Standard talks about what? Standard talks about impairment loss reversal. Standard also talks about कि भाई कितना impairment loss reversal होता है। impairment loss reversal कितना हो सकता है? अगर 100 रुपए की चीज को तुमने 90 कर दिए थे, 100 रुपए की चीज को तुमने 90 कर दी थी, अब उसकी वैल्यू समझो 120 हो गई है, तो क्या मैं 90 से 120 पे लेके जाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। कितना लेके जाऊंगा? दैट व्हाट विल सी नाउ। कितना लेके जाऊंगा? दैट्स व्हाट विल सी नाउ। से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है एसेट का, कैरिंग अमाउंट इन X1, ठीक है, X1 में तुम्हारा 200 रुपया, दैट 200 रुपीज का एसेट इन बुक्स एज ऑन X1, यस। उसका रिमेनिंग लाइफ है 10 साल, उसका रिमेनिंग लाइफ है 10 साल, तो डेप्री कितना हो गया? 20 रुपया, 20 रुपया X2 पे वो 180 का हो गया, यस। X2 पे मैंने टेस्टिंग किया, मेरे को पता चला कि उसका वैल्यू कम हो गया, मैंने उसका इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, मैंने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, तो X2 में मैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज 150। नाउ द रिमेनिंग लाइफ दैट इज होल्ड्स, रिमेनिंग लाइफ दैट इट होल्ड्स इज 9 इयर्स, रिमेनिंग लाइफ दैट इट होल्ड्स इज 9 इयर्स, यस। तो डेप्री कितना चार्ज करूंगा मैं? 150 बाई 9, 150 बाई 9 विच इज 17 रुपया। 31st of March X3 में आफ्टर डेप्री फॉर 9 इयर्स इट इज गोइंग टू बी 133, यस। 17 रुपये चार्ज करने के बाद उसका रिमेनिंग लाइफ इज 9 इयर्स, उसका डेप्री चार्ज करने के बाद द कैरिंग अमाउंट दैट इट होल्ड्स इज रुपीज 133। यस और नो? यस और नो? टेस्टिंग करने में पता चला कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस का पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही कोई रिवर्सल्स का चांसेस है। यस, X1 में स्टार्ट किया था, वी आर एट X3 नाउ, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल में हमने डेप्री चार्ज कर लिया है और हमने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया, हमने रिवाइज डेप्री भी चार्ज कर लिया, यस। X4 में हमने डेप्री चार्ज कर लिया, X4 में हमने डेप्री चार्ज कर लिया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट नाउ इज पोस्ट डेप्री इज 116। X4 में हम डेप्री चार्ज करने के बाद हमारा वैल्यू 116 हो गया, यस। हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किया, पता चला कि भाई हमारी कंडीशंस इंप्रूव हुए, हमारे कंडीशंस इंप्रूव हुए। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में पता चला द वैल्यू दैट द एसेट होल्ड्स नाउ इज रुपीज 150, द वैल्यू दैट द एसेट होल्ड्स नाउ इज रुपीज 150, यस। व्हाट डू आई डू? व्हाट डू आई डू? इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल करूंगा, आई विल डू रिवर्सल, यस और नो? आई विल डू रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ व्हाट? 116, 116 का रिवर्सल होगा, यस और नो? 116 का रिवर्सल होगा, यस और नो? कितने तक होगा? कितना? 116 को 150 कर दूं? Should I make 116 as rupees 150? Absolutely not. Absolutely not. Standard is very clear here. Standard is very clear here. अगर तुम्हारा 116 का कैरिंग अमाउंट है इन योर बुक्स, यस, और 150 रुपये का उसका पोस्ट इंपेयरमेंट टेस्टिंग पता चला कि ये 150 रुपये का है, ये 150 रुपये का वैल्यू लेके आने वाला है। स्टैंडर्ड सेज calculate one amount which is called as a carrying amount had the asset was never impaired. अगर अगर ये 200, अगर ये 200, अगर ये 180 फॉर एग्जांपल, अगर ये 180 इंपेयर होता ही नहीं, अगर ये 180 अगर इंपेयर होता ही नहीं, तो आज उसका वैल्यू कितना होता? अगर ये 180 इंपेयर होता ही नहीं, तो आज उसका वैल्यू कितना होता? दैट बिकम्स आवर एंट्री नंबर 1, दैट बिकम्स had this been never impaired it would have been 140 rupees, had this been never impaired this would have been 140 rupees। कैसे? कैसे? ये 180 X2 पे है, 180 X2 पे है,
हम कहाँ पे हैं? वी आर एट x4, वी आर एट x4, इसलिए x2 2 साल का डिप्रिसिएशन, 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 रुपया, which becomes what? 140. Had this never been impaired, it would have been 140 now. It would have been 140 now. What is the value that it holds post testing? 150. पोस्ट टेस्टिंग के बाद पता चला ये तो 150 रुपए का है, तो मैक्सिमम रिवर्सल दैट यू कैन डू इज लोअर ऑफ बोथ द अमाउंट्स, मैक्सिमम रिवर्सल दैट यू कैन डू इज द लोअर ऑफ बोथ दीज अमाउंट्स। वी गेट दिस। 116 का मैक्स टू मैक्स रिवर्सल कितना होगा? 116 का मैक्स टू मैक्स रिवर्सल होगा 140 तक, 150 तक नहीं जाएगा। विल रिवर्स इट मैक्स टू मैक्स टिल 140 रुपीज। वी गेट दिस, वी गेट दिस। 24 का हम रिवर्सल कर देंगे, तो एसेट बढ़ा देंगे और पीएनएल ओसीआई जो भी केस है उसको हम बढ़ा देंगे। वी गेट दिस। This covers our concepts. This covers our concepts for India 36. मोटा मोटा हम उसको कॉन्सेप्ट ने कवर कर लिया। We've understood what impairment means, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी assets covered है, CGO क्या होता है, corporate assets क्या होता है। We've understood how to compute impairment loss, how to compute the reversal of impairment loss. Yes, do we get this? We start with question round. Okay, let's move to question, guys. Illustration 3 a new SM है, relevant for May 25 exams and so on. This is illustration number 3. Let's read the question. Question क्या बोलता है? Mass Limited gives the following estimates of cash flows related to property, plant, equipment of the March X4. Discount rate तुम्हारा 15% दिया हुआ है, या 15% डिस्काउंट रेट। यस, तुमको कैश फ्लोज दिया हुआ है, दिस इज द कैश फ्लोज दैट वी होल्ड। यस, और तुमको रेसिडुअल वैल्यू दिया है ₹500। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट was purchased on 1st April X1 for 20,000 लाख रुपया। Let's call it 20,000. Yes, 1st April X1 में उसको 20,000 में खरीदा हुआ है, उसकी यूजफुल लाइफ इज 8 साल, रेसिडुअल वैल्यू है उसका 500 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 10,000। Yes, calculate the impairment loss. What does the question say? Question is asking for impairment loss and calculate the revised carrying amounts. Impairment loss कैसे आएगा? Impairment loss में firstly we need to understand what the carrying amount is. Firstly we need to understand the carrying amount is carrying amount as on 31st of March X4। 31st of March X4 मतलब खरीदे हुए कितना टाइम हो गया? X1 है, 2 3 4 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो 20,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू। यस, बाय 8 ईयर्स, ये 1 साल का डिप्री आएगा, इससे 1 साल का डिप्री आएगा, विच इज 2437.5, 2437.5। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, दैट बिकम्स व्हाट? 7312.5, दैट बिकम्स 7312.5। Yes, which is 7313, round off कर दिया। So the revised carrying amount, the carrying amount that I hold in my books now is ₹12687, that is a WDV। मेरे बुक्स में WDV कितना है? 12687 का। Yes, this WDV, this carrying amount has to be compared with the recoverable amount। recoverable amount क्या है? recoverable amount is higher of fair value less cost to sell and value in use। value in use में value in use का मतलब क्या है? I'm going to keep the asset, if I'm going to keep the asset I'm going to sell it one day। तो ये 500 जो है, ये 500 जो है, ये मेरे कैश फ्लोज में आएगा नहीं आएगा? ये 500 जो है ये मेरे कैश फ्लोज में आएगा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं रख रहा हूँ मेरा एसेट को, और रखने से मेरे को इतने कैश फ्लोज आ रहे हैं, रखने से मेरे को इतने कैश फ्लोज आ रहे हैं। यस, रखूंगा तो कुछ टाइम बाद बेच तो दूंगा, 500 बेचने पे आएगा ना, तो 500 भी मेरे कैश फ्लोज में आएंगे। यस, वी गेट दिस। यस, वैल्यू न्यूज कंप्यूट कैसे करेंगे? ये कैश फ्लोज जो है उसको 15% पे टांग देंगे, उसको 15% टांग देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इन कैश फ्लोज का हम 15% पे टांग देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू इज 9513। यस, द प्रेजेंट वैल्यू इज 9513। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 9513 कंपेयर टू 10,000, 9513 कंपेयर टू 10,000, तो 10,000 इज अ बेटर अमाउंट फॉर मी। सेलिंग द एसेट इज बेटर फॉर मी। 10,000 becomes my recoverable amount. This 10,000 has to be compared with what? With my carrying amount, which is 12687. Hence 12687 को मेरे को 10,000 पे लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली 10,000, तो मेरा 2687 का इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। डू वी गेट दिस? 2687 का इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। 10,000 इज माई रिवाइज कैरिंग अमाउंट। डू वी गेट दिस? अगर 10,000 मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? 1st April X1 को कितना? 8 साल। 3 साल के बाद हमने देखा उसको इम्पेयरमेंट के लिए, 3 साल हो गए, बचा कितना? 5 साल। 5 years is what the remaining life is. Yes, 10,000 minus residual value by 5 becomes 1900. तो 1900 हो गया मेरा revised carrying amount. Do we get this? Simple. Fully limited has an identifiable asset with a carrying amount of 1000. तो we have a carrying amount. तो अपने asset का carrying amount है 1000. Yes. Its recoverable amount कितना? Recoverable amount is ₹650. Yes.
टैक्स रेट इज 30% टैक्स बेस इज 800. टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस इज 800. टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? टैक्स बेस टिपिकली मीन्स व्हाट? टैक्स बेस मीन्स द वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बुक्स ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स की बुक्स में 800 रुपया है. ओके. नाउ impairment losses are not deductible for tax purposes. Identify the impact of impairment loss on related deferred tax asset liability against the revised carrying amount of the asset. Firstly, should I book an impairment? Should I book an impairment loss? Of course. मेरा 1000 रुपये का है, उसके बुक्स में और रिकवरेबल अमाउंट है 650. I shall be booking an impairment loss. How much? 350 का. I should be booking 350 का impairment loss. What is the revised carrying amount in the books? 650. Yes, the revised carrying amount in the books is going to be 650. Revised carrying amount is 650 and the tax base is rupees 800. Okay. Irrespective of whether you send it deferred tax or not, अगर तुमको डिटेल कैसे बनाना है इसका शॉर्टकट नहीं पता. सी देयर इज वन वे टू डू इट व्हिच इज नोन एज लॉजिकल वे एंड देयर इज अनदर वे टू डू इट व्हिच इज नोन एज एन इजी वे. ठीक है, एक लॉजिकल वे होता है और एक इजी वे होता है. इन द एग्जाम्स you must use the easy way. 3 घंटा होता है अपने पास. Have 3 hours. We can't keep thinking about what the logical way is. We can't think about it. In the 3 hours you are not going to get the time to think about things. तुम्हारे पास टूल्स होने चाहिए जिससे तुम अपने आप चीजें सॉल्व कर पाओ. You need to have those tools to solve the answers. Yes. तो जो easy way है must be used in the exams. I'm insisting on this. Must be used in the exams. Yes. What is easy way? अगर टैक्स भी 700 का है, टैक्स भी 700 के मतलब उनके बुक्स में 800 रुपए का सेट है, मेरे बुक्स में 650 का सेट है. मेरे बुक्स में टैक्स बेस से मैच करने के लिए व्हाट डू आई डू? मेरे बुक्स में एसेट कम है, अभी कम है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट बढ़ाना पड़ेगा. एसेट बढ़ाना मतलब क्या? डीटीए. डू गेट दिस? दिस इज द इजी वे आउट. मस्ट यूज दिस वे इन योर एग्जाम्स. यू मस्ट यूज दिस. अभी मैं डीटीए कितने का बुक करूंगा? 150 का डीटीए बुक करूँ? ऑफ कोर्स नॉट. मैं कितने का डीटीए बुक करूंगा? 150 इंटू 30%, 45. Let me get this. DTA asset negative means it is 45. Let me get this. Right. Okay. Move to lesson 6. Okay, it's a good question. Company operates a mine in a country where legislation requires that the owner must restore the site on completion of its mining operations. Cost of restoration includes the replacement of the overburden, which must be removed before mining operations commence. A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. The amount provided was recognized as part of the cost of mine and is being depreciated over the mine's useful life. Carrying amount for the provision for restoration is 500 रुपया. Carrying amount for provision for restoration is 500 रुपया, which is equal to the present value of the future cash flows. ठीक है. The entity is testing the mine for impairment. The CGU for the mine is the mine as a whole. CGU is the mine as a whole. ठीक है. The entity has received various offers to buy the mine at a price of around 800 रुपया. 800 रुपये क्या है? 800 रुपये क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. यस, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है. दिस प्राइस रिफ्लेक्ट्स द बायर will assume the obligation to restore the overburden. Read this again. The entity has received various offers to buy the mine at a price of around 800 रुपये. 800 रुपये में कोई खरीद लेगा ये इस माइन को. जो है बायर ही उसका बर्डन उठाएगा. जो रिस्टोरेशन करना है उसको बर्डन कौन उठाएगा? बायर उठाएगा. ठीक है. we are clear with this. Okay. Disposal cost for the mine are negligible. The value in use of the mine is approximately 1200 रुपया. The value in use of this mine is 1200 रुपया excluding the restoration cost. अभी वैल्यू इन यूज कितना है? 1200. मतलब फ्यूचर कैश फ्लो से मेरे को इतना आएगा, पर मेरा ऑब्लिगेशन कितने का? 500. मेरा ऑब्लिगेशन कितने का? रिस्टोरेशन का 500 रुपये का रिस्टोरेशन का आज का ऑब्लिगेशन है. ये 1200 क्या है? 1200 मेरा फ्यूचर कैश फ्लो का आज का वैल्यू है. 500 क्या है? फ्यूचर रिस्टोरेशन का आज का वैल्यू है. तो आज का नेट वैल्यू कितना हुआ? 700. तो मैं वैल्यू इन यूज 700 रुपया. व्हाट इज माय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज 800 रुपया. 500 कम हो गया. थिंक अबाउट दिस. 800 में से 500 हटा हो गया. Should I remove 500 from this 800? Should I do that? Of course not. Because the price reflects the fact the buyer will assume the obligation. Buyer इसके ऊपर जाके और खर्चा करेगा रिस्टोरेशन को हटाने के लिए. Do we get this? तो ये 500 ये 800 रहेगा. ये 800 minus 500 नहीं होगा. Yes. What is my recoverable amount? The recoverable amount becomes
Recoverable amount becomes what? 800 रुपया. Better amount is 800. What is the carrying amount in my books? What is the carrying amount in my books? Carrying amount in the mine is 1000 रुपया. Carrying amount in the mine is 1000 रुपया. उस माइन का 1000 रुपये का वैल्यू है और उस माइन में रेस्टोरेशन भी है. उस माइन में रेस्टोरेशन भी है. 500 रुपये हटाओ. 500 रुपये becomes what? My net value of that mine. Let me get this. Net value of that mine. ये 800 रुपया है, 500 रुपया है. Should we be impairing this? No. Recoverable ज़्यादा है. Question number 7. Okay. NADA acquired NADB for 50 million, of which 35 million is the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. ठीक है. 50 मिलियन में खरीदा है, उसका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? उसका एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना है? मेरा परचेज कंसिडरेशन इज 50. उसका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना है? 35. ठीक है. अभी the acquisition of B Limited is to be integrated into two of NADA CGUs with the net assets being allocated as follows. ठीक है. नेट एसेट्स का एलोकेशन 25 और 10 दिया हुआ. 35 को जो एक्वायर किया है, 35 को जो एक्वायर किया उसमें CGU1 इतना है, CGU2 इतना है. Do we get this? Okay. In addition to the net assets acquired that are assigned to CGU2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to acquisition. There are no synergetic goodwill attributed to other CGUs. Okay. NADA allocated the purchase consideration of the acquired business to CGU1 and 2 in the ratio of this. ठीक है. 50 पे तुमने खरीदा है, 50 पे से CGU1 के लिए तुमने इतना दिया, CGU2 के लिए इतना दिया. ठीक है. एलोकेशन ऑफ गुडविल निकालो. सिंपल है. There is 1, there is 2. What is the PC I've paid for 1? I've paid 33 and I've paid here 17. What is my total? Total is 50. What is the identifiable net assets? It is 25 and it is 10. This is 35. Yes. मेरा गुडविल कितना बना? गुडविल is 8, 7, 15. Do we get this? 8, 7, 15. Look at illustration 11, guys. Come on. NCI measurement and goodwill impairment के बारे में है. ठीक है. It acquired 80% shares of subsidiary for 3.2K. Rate of acquisition identifiable net assets तुम्हारा 3000 हुआ. PC is 3200. Identifiable net assets are 3000. Yes. A elects to measure NCI at PSNA. Proportionate share में बुक किया हुआ है. Yes. तो my goodwill becomes what? I can directly take goodwill. राइट. मैंने 80% पे ले लेता हूँ. अगर मैं इसका 80% करूँ, this becomes 2400. यस. 3200 माइनस 2400, 800 का मेरा गुडविल हो गया. And this goodwill is what? Partial goodwill. This is partial goodwill because this goodwill attributes to just the parent. ठीक है. इतना we've understood from the question so far. ये टोटल गुडविल है क्या? ये मेरा टोटल गुडविल है क्या? ये टोटल फॉर्म का गुडविल है क्या? नहीं है. टोटल फॉर्म का गुडविल नहीं है ये. ओके. इतना आपने को समझा है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बी लिमिटेड्स कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 2700 रुपये. 2700 रुपये उसका कैरिंग अमाउंट हो गया. यस. एक्सक्लूडिंग गुडविल. यस. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बीज एसेट्स इज 2000 रुपये. एंड केस 1, केस 2 2800 रुपये. टेल मी वन थिंग. Let's move to this. Let's move and let's look at this question a little better. मेरा एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? 2700. मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? 2700. यस. कैरिंग अमाउंट 2700. यस और नो? व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म? 800 रुपया है क्या? गुडविल ऑफ द फर्म कितना? 800 रुपया है क्या? ये 1000 रुपया है ना. फर्म का कितना है? 1000 रुपया है ना. फर्म का गुडविल 1000 रुपया. पेरेंट प्लस एनसीए का गुडविल कितना बनता है? 1000 रुपया. एनसीए का गुडविल मेरे बुक्स में है क्या? इजी एनसीए का गुडविल मेरे बुक्स नो. पेरेंट का गुडविल मेरे बुक्स में है. पर जब भी पेरेंट सब्सिडियरी के क्वेश्चन आएंगे, वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग नोन एज नोशनल गुडविल. नोशनल गुडविल क्या होता है? ये 800 रुपया जो है, ये पेरेंट का है. ये सिर्फ पेरेंट का है. पर 800 डिवाइड बाई 0.8. 0.8. 800 इज 80%. 800 इज 80%. यस. तो 800 डिवाइड बाई 0.8 क्या हो जाएगा? 1000 क्या होगा? दैट इज माई टोटल फर्म्स गुडविल.
यस, 1000 रुपये मेरा टोटल फॉर्म का गुडविल हो गया, टोटल फॉर्म का गुडविल हो गया। टोटल मेरे एसेट्स कितने हो गए? 3700। डू गेट दिस? फॉर्म का कितना वैल्यू हो गया? 3700। मेरे एसेट 2700 के हैं, उसमें से मेरा 1000, उसमें और मेरा 1000 गुडविल है। टोटल एसेट्स कितने हो गए? 3700 के। यस, वैल्यू न्यूज कितना दिया क्वेश्चन में? वैल्यू न्यूज 2000। इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? 1700। इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? 1700। 1700 विल बी फर्स्ट एलोकेटेड टू गुडविल, ये गुडविल में जाएगा। 1700 विल बी फर्स्ट एलोकेटेड टू गुडविल। यस, देन इट विल बी एलोकेटेड टू एसेट्स। गुडविल में कितना जाएगा? पेरेंट एनसीए, पेरेंट कितना है? 80%, एनसीए कितना? 200। टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, ये पेरेंट का 800 रुपया है, एनसीए का 200 रुपया है। पेरेंट का 800 मेरे बुक्स में है, पेरेंट का 800 मेरे बुक्स में है, मैंने गुडविल 800 का बुक किया हुआ है, मैंने गुडविल 800 का बुक किया हुआ है यहाँ पे, तो उससे मेरा 800 रुपया मेरे बुक्स में है। यस, पर 200 रुपया मेरे बुक्स में नहीं है, ये नोशनल अमाउंट है, ये नोशनल अमाउंट है। ये नोशनल अमाउंट हम निकालते क्यों है? टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे एसेट्स पे कितना इंपेयरमेंट जाना चाहिए। अगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया होता तो एसेट्स पे कितना आता? 200 एक्स्ट्रा आता। एसेट्स पे इंपेयरमेंट 200 एक्स्ट्रा आता, पर इज दैट द फेयर वे ऑफ शोइंग इंपेयरमेंट ऑन द एसेट्स? एसेट्स उतने से इंपेयर हुए हैं क्या? नहीं हुए। गुडविल बुक्स में है ही नहीं, हेंस गुडविल का नोशनल वैल्यू निकालो। ये 200 रुपये क्या है? दिस इज द नोशनल गुडविल, यस और नो? दिस 200 इज द नोशनल गुडविल। ये क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि एसेट्स में एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट ना चला जाए, जो मेरे गुडविल से पहले निकालना चाहिए। तो टोटल फॉर्म का गुडविल निकालो। टोटल फॉर्म का गुडविल कितना है? 1000 रुपया। उसमें से पेरेंट का बुक्स में कितना? 800 रुपया। नोशनल कितना है? जो होना चाहिए but है नहीं, because the entity has decided to do what? Has elected to measure NCI at Pasna। मेरा 1700 रुपये का क्या इम्पेयरमेंट लॉस? मेरा गुडविल 1000 का आ गया, उसमें से पेरेंट में आ गया, एनसीआई में आ गया। एसेट्स में एलोकेट 700 हुआ, सिंस हमने एनसीआई का भी गुडविल निकाला, एसेट्स में ओवर इम्प्लीकेशन नहीं हुए इम्पेयरमेंट के। अपने को लॉजिक समझ में आता है? डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? अगर मैं एनसीआई का ये 200 निकालता नहीं तो एसेट्स में ज़्यादा चला जाता ना, पर एसेट्स में ज़्यादा चला जाता। Should assets take more burden of the impairment? No, no, because asset उतने से इम्पेयर हुआ ही नहीं है। एसेट तो इम्पेयर सिर्फ 700 से हुए हैं। We get this? 1700 का पहला क्लासिफिकेशन इज 1000 बचा हुआ एसेट्स। We get this? 1000 का क्लासिफिकेशन पेरेंट में 80 टका, एनसीआई में 200 टका और 200 रुपया। एसेट्स अगेन इन द रेशियो ऑफ 80 to 20 जाएगा। 700 will be divided again into 80 and 20. Do we get this? Do we get this? This is the case one. This is case one. Yes, 2000 अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट है तो व्हाट विल बी माय इम्पेयरमेंट का क्लासिफिकेशन इनटू पेरेंट एंड एनसीआई? टेल मी वन थिंग, व्हेन आई कैलकुलेट एनसीआई का टोटल इम्पैक्ट, हाउ मच इज द टोटल इम्पैक्ट इन माय बुक्स फॉर एनसीआई विद रिस्पेक्ट टू इम्पेयरमेंट? 140 ना सिर्फ, क्योंकि मेरे बुक्स में तो ये है ही नहीं, ये तो नोशनल है। टू अंडरस्टैंड कि एसेट्स में कितना जाएगा, let me get this, इम्पेयरमेंट का एसेट्स पे कितना इम्पैक्ट होना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए हम नोशनल गुडविल निकालते हैं। क्योंकि एसेट्स पे बैलेंस जाएगा, एसेट पे तो बैलेंस जाएगा, अगर ये 200 नहीं होता तो एसेट पे तो लॉस हो जाता, विच इज इनकरेक्ट, डू वी गेट दिस? अगर मैं वो क्वेश्चन पूछे कि एनसीआई का इम्पैक्ट कितना है, एनसीआई का इम्पैक्ट नहीं बता पाऊंगी बिकॉज दिस इज नॉट इन माय बुक्स। पेरेंट का इम्पैक्ट कितना है? 800 प्लस 560, 800 प्लस 560 विच इज 1360। डू वी गेट दिस? 3500 कैरिंग अमाउंट 3500 प्लस 200 रुपये का नोशनल गुडविल 3700, उसमें से रिकवरेबल निकाल दिया, 1700 बचा, 1700 बचा। एनसीए पे इम्पैक्ट कितना है? एनसीए पे 140 का इम्पैक्ट, एनसीए पे 140 का इम्पैक्ट है। यू गेट दिस? केस 2 इज सिमिलर टू केस 1। केस 2 तुम देख लो, इट इज वेरी इजी। ओके, Sun Limited is an entity with various subsidiaries. The entity closes its books of accounts every year ending 31st of March. On 1st July X1, Sun Limited acquired 80% interest in Proto Limited. Details of the acquisition were as follows. Okay. 1st July X1 को Sun Limited has acquired 80% in Proto Limited. Right? Details of the acquisition were as follows. Sun Limited acquired 8 lakh shares in Proto Limited by issuing 2 equity shares. By issuing 2 equity shares for every 5 shares held. ठीक है? 8 लाख शेयर्स को acquire किया, 8 लाख शेयर्स को acquire किया। ठीक है? फेयर वैल्यू ऑफ सन लिमिटेड शेयर ऑन 1st जुलाई इज ₹4। यस, उसने कितने इशू किया? 8 लाख शेयर्स को अक्वायर किया है। यस, हर 5 शेयर के लिए 2 शेयर इशू किया है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन व्हाट इज द वैल्यू दैट माय शेयर होल्ड्स ₹400, राइट? मेरा परचेस कंसीडरेशन कितना हुआ? 12,80,000। 12,80,000 इज द वैल्यू ऑफ माय परचेस कंसीडरेशन। यस, इतना समझ में आता है फ्रॉम द क्वेश्चन? यस, ओके। फेयर वैल्यू ऑफ प्लूटो शेयर कितने? 1.4।
प्लूटो के शेयर का वैल्यू 1.4 है, कॉस्ट ऑफ इशू वाज ₹5%। कॉस्ट ऑफ इशू मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में जितना भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो पीएनएल में जाता है, दिस विल गो इन पीएनएल। यस, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस ऑफ 1 लाख डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, ये भी जाएगा मेरा पीएनएल में। दिस इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिस इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्लूटो लिमिटेड वर मेजर्ड 1.3 million। यस, सन लिमिटेड इनिशियली मेजर्ड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन प्लूटो लिमिटेड एट फेयर वैल्यू। तो मेरा एनसीआई फेयर वैल्यू पे, मेरा एनसीआई फेयर वैल्यू पे they use the market value of Pluto Limited for this purpose. Tell me one thing, my purchase consideration is 12.8 lakhs. Yes, my identifiable net assets is 13 lakhs, 1.3 million, 13 lakhs. What is my NCI? What is my NCI, guys? Come on. What is my NCI? NCI कितना है मेरा? मैंने 80% एक्वायर किया है, 8 लाख शेयर्स। टोटल कितना है? 10 लाख। तो 2 लाख शेयर्स बचे, 2 लाख शेयर्स का वैल्यू इंटू 1.4, क्योंकि they've taken the market value of Pluto Limited. Yes, my NCI is 2.8 lakhs. Yes, what is my goodwill? What is my goodwill? 0.8, ये मेरा परचेज कंसिडरेशन है, प्लस 2.8 माइनस 13, 2.6, 2,60,000, 2,60,000 is my 2,60,000 is my goodwill. 2,60,000 is my goodwill. तो समझ में आता है? Do we understand this from the question that we understood so far? Yes, मेरा goodwill 2,60,000 का है। Pluto Limited comprises 3 CGUs A, B, and C. When Pluto Limited was acquired, the directors of Sun Limited estimated the goodwill arising on acquisition could reasonably be allocated to units A, B, C in the ratio 2:1. मेरा goodwill जो है वो A, B और C में, A, B और C में allocate हो सकता है in the ratio 2:1. 2:1 में हम allocate कर सकते हैं, मतलब कितना होता है? What is the allocation amount? 1,04,000. So 1.04, 1.04, and this is 0.52. Now we get this. The assets in these CGUs and the recoverable amount are as follows. Unit ABC carrying value before goodwill allocation is this, and the recoverable amount is this. Is it simple? Is it simple so far? Calculate the carrying amount of goodwill arising on acquisition. कितना? 2,60,000, right? Compute the total impairment loss if any. Impairment loss निकालना easy है। ये 600 जो है, ये 600 जो है, 600 हम क्या ऐड करेंगे? 104, इसमें 104 और इसमें 52। यस, इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 704। ये हो जाएगा 654 और ये हो जाएगा 502। यस, इसका रिकवरेबल कितना है? थोड़ा ज़्यादा है, नो इम्पेयरमेंट। इसका रिकवरेबल कितना है? 654 इज द कैरिंग, रिकवरेबल इज दिस। इसका 4 का इम्पेयरमेंट, ये कितना का? इसका 102 का इम्पेयरमेंट। let me get this, इसमें टोटल इम्पेयरमेंट लॉस, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस 106 रुपये, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस 106 रुपये। let me get this, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस रुपये 106। let me get this, let me get this guys, let me get this। total impairment losses ₹106। Now we get this। तो किसके बारे में बात करते हैं? It talks about corporate assets। It talks about corporate assets। Corporate asset मतलब एक common asset जिसमें multiple CGUs हैं, right? Okay, read the question. ABC has 3 CGUs. ABC, the carrying amount of which as on 31st March X1 was as follows. ABC has a carrying amount 507501100. Remaining useful life is thus 2020, right? ABC also has 2 corporate assets remaining useful life of 20 years, right? Corporate asset X carrying amount 600 रुपया, remarks the carrying amount of X can be allocated on a reasonable basis, that is pro rata basis, to the individual cash generating units। ये जो corporate asset है ये अपन इन तीनों में बांट सकते हैं, इन तीनों में बांट सकते हैं pro rata basis में। we'll look about this। corporate X Y है, 200 रुपये का है। Y cannot be allocated to on a reasonable basis to the individual cash generating units। Y का allocation पता नहीं अपने को, और फिर अपने को recoverable amount दिया हुआ। This is a fairly easy question। Let's look at this। नंबर 2, ठीक है। पहली बात तो X एलोकेबल है, X एलोकेबल है, X एलोकेबल है तो X को एलोकेट कर दो। पहली बात तो A, B एंड C इनका कैरिंग अमाउंट भी लो, टोटल अमाउंट आ गया। कैरिंग अमाउंट पता है, टोटल अमाउंट आ गया। टेल मी वन थिंग गाइस, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ ABC? A का 10 है, B का 20 है, C का 20 है, X का कितना है? X का भी 20 है, X का भी 20 है,
when you allocate a corporate asset, when you allocate a corporate asset to CGUs, उसको वेटेड एवरेज करना पड़ता है. यू हैव टू वेटेड एवरेज देम. व्हाई? बिकॉज ये तो 10 साल में खत्म हो जाएगा. ये दोनों, ये तीनों का 20 साल बचा हुआ है, ये 10 साल में खत्म हो जाएगा. सुनो, ये 10 साल में खत्म हो जाएगा. बस all both of these have 20 years left. This has 20 years left. So allocating basis carrying amount is not a suitable way to allocate. Allocating just basis carrying amount is not a suitable way to do it. So what do we do? Standard says अगर ऐसा कोई situation है, in that case to multiply this with the remaining useful life. तो 1:2 में उसको तुम बांट दो. 1:2 में तुम उसको weighted average कर लो. 500 multiplied by 10, 750 multiplied by 20, in 1100 multiplied by 20. तो इसका weights आ गया. We have weighted average now. Yes, let's look at this. We have weighted average 1, 2, 2. Yes, weighted average कितना आएगा अमाउंट्स? 500, 1500, 2200, which is 4200 as a total amount. 4200 मेरी total amount है. Now what will I do? Now I'll allocate what? Now I'll allocate X basis the weighted average carrying amounts. Now I'll allocate X basis the weighted average carrying amounts, which is 72, 216, 312. Let me get this. Total कितना है मेरा? Total मेरा carrying amount कितना है? Asset का और X का 500 plus 72. ये weighted average होगा क्या? Of course not. This weighted average is used just for allocation. Let me get this. Weighted average is used just for allocation. Am I making sense, guys? Am I making sense? Yes. ये 500 रुपया plus 72 होगा ना, 572. 750 plus 216, 956. Let me get this. Let me get this. We have the recoverable amounts. We have the recoverable amounts. 572 इसका amount है. It's the carrying amount है. इसका recoverable चीज हुआ है. Is there an impairment possibility? No. Impairment loss का possibility है नहीं है. Total 966 है इसका वैल्यू और उसका recoverable loss हुआ है. 66 becomes my impairment loss. 1412 इसमें carrying amount, 1400 इसमें recoverable, 12 रुपए का impairment आ गया. Total impairment कितना हुआ? 78 का. Let me get this. Let me get this. Revised carrying amount कितना होगा? Revised carrying amount कितना होगा? यहाँ पे impairment हुआ नहीं हुआ तो 572. यहाँ पे impairment हुआ है तो 900 रुपया बन जाएगा मेरा revised carrying amount. यहाँ पे 1400 रुपया हो जाएगा मेरा revised carrying amount. Total amount that I hold now is 2872. 2872 is my revised carrying amount of the CGUs with X and post impairment. Let me get this. Let me get this. अभी Y allocable नहीं था. ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कोई भी एसेट हो या फिर गुडविल हो जो allocable नहीं है, तो पहले अपन क्या करते हैं, जितना भी allocable है उसके बेसिस पे impairment कर लो, बचा हुआ बाद में देख लेंगे. यस, Y का impairment, Y का allocation पता नहीं तो Y हमने बाद में allocate किया इसमें. 2872 post impairment amount of X, Y and C. इसमें हमने 200 अभी ऐड कर दिया Y को, इसमें हमने X, Y को भी ऐड कर दिया. नाउ टोटल अमाउंट दैट आई होल्ड इज 3072. 3.2 के इज माय रिकवरेबल अमाउंट. इसका इम्पेयरमेंट पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है. इसका इम्पेयरमेंट पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है. व्हाट इज द स्टेज? व्हाट इज द स्टेज? हमने पहले क्या किया? व्हाट डिड वी डू फर्स्ट? फर्स्टली हमने क्या किया? विदाउट एलोकेशन ऑफ Y, विदाउट Y, जस्ट X को एलोकेट करके देखा कितना इम्पेयरमेंट बन रहा है. X इम्पेयर हो गया, उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बचा उसमें हमने Y ऐड कर दिया. जो भी हमारा अमाउंट बना उसमें हमने Y ऐड कर दिया. हमने टोटल देखा, फिर ये टोटल को हमने कंपेयर किया विथ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ टोटल. टोटल फॉर्म का रिकवरेबल कितना है? देन वी गॉट इम्पेयरमेंट लॉस. वी गेट दिस. वी गेट दिस. पहले जितना एलोकेबल है उसको एलोकेट करके इम्पेयरमेंट देख लो, जो एलोकेबल नहीं है उसको बाद में ऐड करो और फिर टोटल का इम्पेयरमेंट देखो कितना होता है. वी गेट दिस. Am I making sense, guys? Yes? Okay. Okay. Question number 2 done. Let's move to question number 3. Question 3 is a good question to ask. Question 3 is a good question. Let's look at question 3. Let's read the question. Parent acquires 80% ownership in subsidiary. So, 1 अप्रैल 11 को. तो माय परचेस कंसिडरेशन इज 2100. व्हाट इज आइडेंटिफाइबल एसेट्स? आइडेंटिफाइबल एसेट्स मेरा 1100 का, 1500 का. आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आर 1500 का, राइट. पेरेंट चूजेस टू मेजर एनसीआई एट पसना. पसना में मैंने रिकॉर्ड किया मेरे एनसीआई को, राइट. तो अगर मैं 80% ओनरशिप ले रहा हूँ, व्हाट इज माय गुडविल? व्हाट इज माय गुडविल? 1500 into 80% तक 2100 minus 1200, 900 हो गया. 900 बिकॉज माय गुडविल.
Yes or no? The assets of the subsidiary together are the smallest group of assets that generate cash flows that are largely independent of the cash flows from other assets or group of assets. Since other cash generating units of parent are expected to benefit from the synergies combination, the goodwill of Patso related to those synergies have been allocated to other CGOs within the parent. Read this again. Read this again. Since other cash generating units of parent are expected to benefit from the synergies of the combination, the goodwill of Rohit Patso related to those synergies have been allocated to other CGOs within the parent. Tell me one thing. Tell me one thing. पेरेंट को पेरेंट के सीजीओस को कुछ बेनिफिट होने वाला है इस एक्विजिशन से. पेरेंट के सीजीओस को कुछ एक्विजिशन की वजह से बेनिफिट्स होने वाला है. कितना रुपए का? 500 का. स्पेसिफिकली यस. हेंस ये 500 रुपए का गुडविल जो है वो पेरेंट के सीजीओस को ही एलोकेट हुआ है. टेल मी वन थिंग. ये 500 रुपया, ये 900 में से मेरा टोटल 900 रुपए का गुडविल है. पेरेंट का 900 रुपए का गुडविल है, उसमें से 500 का जाएगा. ये स्पेसिफिकली मेरे पेरेंट के सीजीओस को जाएगा और बचा हुआ क्या है? बैलेंस. Let me get this. When we will talk about impairment in the future, I will not touch this 500 because impairment मेरा नहीं होगा, मेरे सब्सिडरी का होगा. गुडविल मेरे सब्सिडरी का है. Yes or no? गुडविल मेरे सब्सिडरी का है. Yes or no? Yes or no? ये 500 क्या है? ये 500 मेरे सीजीओस के लिए. जब मैं impairment की बात करूंगा मैं ये 500 को टच नहीं करूंगा. Let me get this. Let's read the question. 31st March next to parent determines that the recoverable amount of cash generating units subsidiary is 1000 रुपए. The recoverable amount is 1000 रुपए. Carrying amount of net assets excluding goodwill is 1350. Let's look at this. PC कितना है? 2100. Identifiable net assets is 1200 and this goodwill is 900 रुपए. Now this is the partial goodwill. Do we agree with this? This is the partial goodwill. This is not full goodwill. ये सिर्फ पेरेंट का goodwill है. पर इस पेरेंट के goodwill में से 500 रुपया सिर्फ पेरेंट के सीजीओस के लिए. ये सिर्फ पेरेंट के सीजीओस के लिए 400 रुपए की है. बैलेंस 400 पेरेंट प्लस सब्सिडरी के लिए. ठीक है दिस. ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी का है. ठीक है दिस. पर ये 400 जो है ये फुल गुडविल है क्या? 400 जो है वो फुल गुडविल है क्या? तो 400 पार्शियल गुडविल है. तो नोशनल गुडविल निकालेंगे हम. पेरेंट सब्सिडरी के क्वेश्चंस में विल कैलकुलेट व्हाट. पेरेंट सब्सिडरी के क्वेश्चंस में विल कैलकुलेट व्हाट? नोशनल गुडविल. Why notional goodwill? Books does not have goodwill for NCI. Does that mean that goodwill should not be impaired? Does that mean that goodwill should not be impaired? That goodwill must be impaired. Why? अगर वो goodwill नहीं है, अगर वो goodwill नहीं होता, वो goodwill नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे assets पे impairment का burden ज़्यादा है. Should we be doing that? We should not be doing that. We should be doing what? We should be calculating notional goodwill. Notional goodwill क्या हो गया? 400 by 0.80. 400 by 0.8 which is 500 रुपये. अभी गेट दिस. उसमें कितना पेरेंट का शेयर है, कितना एनसी का शेयर है. 400 रुपये मेरे बुक्स में, 100 रुपये मेरे बुक्स में नहीं है. 100 रुपये मेरे बुक्स में नहीं है. यस ओके. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय नेट एसेट्स? माय नेट एसेट्स 1350 है. उसमें मेरा गुडविल नहीं है, तो गुडविल इज 500 रुपये. 500 रुपया मेरा गुडविल कितना? 500 रुपया माइनस 1000 रुपये इज मेरा रिकवरेबल. तो 850 का हो गया मेरा इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस में 850 रुपये. गुडविल पे पहले इंपैक्ट आएगा. I am emphasizing on this again and again. We calculate notional goodwill so that the other assets do not get the extra burden of the impairment just because your books does not have notional goodwill or goodwill for NCI. Are we clear with this? Yes. Goodwill पे impact 500 रुपया. ये 500 रुपया. Yes. बैलेंस asset पे 350 का बैलेंस आ गया. पेरेंट पे 400 रुपये का बैलेंस, 400 रुपये का इम्पैक्ट है, which is 80%. NCI पे 100 है. इस पे इम्पैक्ट मेरे बुक्स नहीं आएगा. मेरे बुक्स में NCI का गुडविल ही नहीं है. We just calculated the notional portion. Yes. एसेट्स कितना? 350 का है. बैलेंस इंपैक्ट ऑन एसेट्स ऑफ इम्पेयरमेंट. पेरेंट कितना है? एनसीए कितना है? वी गेट दिस. 850 इज माय इम्पेयरमेंट लॉस. माय गुडविल टेक्स द फर्स्ट बर्डन, माय एसेट्स टेक द सेकंड बर्डन. उसमें मेरा पेरेंट और एनसीए का शेयर है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आर वी क्लियर इन दिस? यस. कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस. आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा? मेरा गुडविल और मेरा एसेट्स, मेरा टोटल. मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था गुडविल का? 400 रुपया था मेरे गुडविल का कैरिंग अमाउंट. मेरे बुक्स में सिर्फ पेरेंट का गुडविल था 900 था. उसमें से 500 को मैं टच करूंगा नहीं करूंगा, सिर्फ 400 को करूंगा. 400 था. यस. 400 को मैंने पूरा इंपेयर कर दिया. 400 तो पूरा निकल गया बुक्स में से. यस. बैलेंस कितना? 0. एसेट्स कितना? 1350 के एसेट्स. 1350 के एसेट्स. उसमें से एसेट्स 350 के निकलेंगे.
एसेट 350 के निकलेंगे, बचा कितना 1000, बट टोटल इंक्लूडिंग गुडविल विच इज नो मोर नाउ 1000 रुपये हो गए. Do we get this? Do we get this? Do we understand the logic? I just want you to understand the logic. Even if you don't understand the entire process. Parent subsidiary के केस में हम नोशनल गुडविल क्यों निकाल के समझा? तभी निकलेगा जब NCI is at personal, not at fair value. Yes, if NCI is at fair value, मतलब उसका गुडविल ऑलरेडी मेरे बुक्स में है. फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? ओवर एंड अबाउट द बुक वैल्यू. ओवर एंड अबाउट बुक वैल्यू मतलब क्या है? गुडविल. ओवर एंड अबाउट बुक वैल्यू का मतलब क्या है? गुडविल. Do we get this? If it is at personal, that means उसका गुडविल मेरे बुक्स में नहीं है, तो नोशनल निकाल. अगर वो पर्सनल पे नहीं है, फेयर वैल्यू पे, मतलब उसका गुडविल मेरे बुक्स में है, तो नोशनल निकालने का जरूरत नहीं. So we get this. Okay, we're done with question number 3. We'll now move to, I think, the last or the second last question for the day. Yes. Question number 7. Question number 7 is a fairly easy question. क्या बोलता है ये? तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम अ फॉरेक्स स्टैंडपॉइंट. ठीक है, प्लीज रीड द क्वेश्चन. कम ऑन. 31st March XYZ Limited makes following estimate of cash flows for one of its assets located in USA. ठीक है, यूएस में कोई कैश, उसका एसेट्स पड़ा हुआ है, उसमें से इतने कैश फ्लोज आएंगे, डॉलर में इतने कैश फ्लोज आएंगे. ठीक है, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट को इंडिया का दिया हुआ है, यूएसए का दिया हुआ है. ठीक है, और मेरे को डिस्काउंट रेट दिया हुआ है. आई नीड टू कैलकुलेट वैल्यू न्यूज. राइट? हाउ डू आई कैलकुलेट वैल्यू न्यूज? वैल्यू न्यूज इज व्हाट? मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्काउंटेड वैल्यू, मेरे फ्यूचर वैल्यूज का आज का वैल्यू क्या है. तो ये मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है 80, 120, उसको को डिस्काउंट करना है. अभी डॉलर है तो डॉलर को मैं टांगूंगा अभी डॉलर पे ही ना. डॉलर को मैं टांगूंगा कौन से रेट पे? 10% पे, डॉलर के रेट पे. यूएसए का रेट कितना है? 10%. तो 80, 120 को मैं टांगूंगा, मैं लेके आऊंगा 10% पे. तो वी गेट दिस. इफ आई गेट सम अमाउंट, से फॉर एग्जांपल आई गेट एक्स अमाउंट, आई विल मल्टीप्लाई दिस एक्स अमाउंट विद विच रेट? अगर मैंने टांगा है, इफ आई हैव डिस्काउंटेड दिस टू द प्रेजेंट वैल्यू, उसको किस दिन का वैल्यू मेरे को मिला? वो 31st मार्च का वैल्यू मिला, 31st मार्च का प्रेजेंट वैल्यू मिला इन डॉलर्स. Now if I want the rupee value of it, I'll take the spot rate. I'll take the exchange rate as on 31st March, which is 45. Let me get this. Let's look at the solution. Yes, these are my cash flows. इसको मैंने 10% पे डिस्काउंट किया है, and I've used the 45 rupees discount rate or as on 31st March. Let me get this. This is my. Okay, this completes India's 36 impairment of assets. I hope ये छोटू सा जो लेक्चर था, it was of some value to it and it helps you clear your exams, helps you add more value to your preparation. The idea and the intent behind creating such videos, will create more of these. The idea and intent remains the same, is that try to be as crisp as possible. I'll try to be as crisp as possible and as short as possible and as clear as possible. Hope you do well. Hope you do well in your exams. Goodbye. Thank you.